السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے آواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جماعت المبارک کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یوم جمعہ عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ اسی کے سبب ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اسی جمعے کے بہانے مسجدوں کی طرف آیا کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا شکر، فضل اور احسان ہے کہ اس نے یوم جمعہ عطا فرمایا۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو لوگ تیزی کے ساتھ جمعے کی تیاری کرتے ہیں اور مسجدوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جمعے کے بارے میں آیا ہے، یہ جمعہ ہفتے کی عید ہوا کرتا ہے اور اس دن کی فضیلتیں، برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اسی جمعے کے ذریعے سے ایک مقصد اسلام کا یہ بھی ہے کہ اس کے جمعے کے دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ایک پیغام پہنچایا جائے، ایک پیغام دیا جائے۔ تو یہ بھی جمعے کے مقاصد میں شامل ہے۔ مذہب اسلام کی نظر بہت بلند ہے۔ جو جو کام ہمارے لیے اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیے، وہ اگرچہ آج ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن ان میں ہے حکمت۔ آج نہیں آئے تو کل سمجھ میں آئیں گے، کل نہیں آئے تو ہماری آنے والی نسلیں کہیں گی ہاں یہ خوبی ہے مذہب اسلام کی۔ ورنہ قیامت کے میدان میں خود معلوم ہوگا اگر یہ مذہب اسلام نے قوانین نہ بنائے ہوتے تو ہمیں کیا کیا پریشانیاں جھیلنا پڑتی۔ دیکھیں، اور قومیں ہیں تفرقہ بازی پھیلی رہتی ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن جمعہ جو ہے وہ ایک لمبے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج گروپ ہیں، آج جو ہے واٹس ایپ، فیس بک کا زمانہ ہے۔ لیکن اسلام کی اس میں یہ خاصیت تھی، اسلام نے یہ چاہا کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ تمام لوگ اکٹھے ہوں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، آپس میں مصافحہ کریں گے، پیار محبت ان کی بڑھ جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے جب ہم ملتے ہیں، آمنا سامنا نہیں ہوتا ہے تو یادیں جو ہیں پرانی ہونے لگتی ہیں۔ ایک ہفتے تک نہیں ملے تو اور یاد جو پہلے مضبوطی تھی ہمارے جان پہچان میں، تعلقات میں، اس میں کمزوری ہو گئی۔ ایک مہینے تک نہیں ملے اور زیادہ کمزوری ہو گئی۔ ایسے ہی سالوں سال گزر جاتے ہیں، کچھ رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ تعلقات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کا نظریہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ان مساجد کے ذریعے سے، ان جمعوں کی محفلوں کے ذریعے سے ایک میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ایک پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے جس کے ذریعے سے قوم مسلم میں انتشار پیدا نہ ہو اور تمام لوگ مل کر کے رہیں۔ تو وہ پیغام، وہ میسج، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ اب یہی شاید
शायद सोचते हैं जब तकरीर ख़त्म हो जाए उसके बाद जाया जाए। तो ये भी एक जुमे के मकासद में से एक मकसद है। जुमे के मकासद में से एक मकसद है कि लोगों को इसके ज़रिए से एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि एक बस्ती में रहने वाला एक इमाम हो या आम बस्ती का नागरिक, वो उन हालात को जानता है जो बस्ती में होते हैं, वो उन हालात को जानता है जो बस्ती में काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं तब उसके पेश नज़र रहते हैं। घर का आदमी घर के हालात जानता है कि नहीं। तो ये मज़हब इस्लाम का नज़रिया था कि जो हफ्ते में बिगाड़ पैदा हो, जुमे के दिन उन बिगाड़ों के बारे में बताया जाए और उनसे हट करके सही रास्ते पर आया जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो बातें अइम्मा मसाजिद बता सकते हैं वो दूसरे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा फला भाई ये गड़बड़ी करता है, तो वो वही बात की इस्लाह करते हैं। कोई बाहर से आकर के उसे क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो घर के अंदर रहता है वो घर के हालात जानता है। तो वही बातें, और यही इस्लाम का नज़रिया था कि वो बातें बताई जाएं जो हफ्ते में खराबियां पैदा हों उनका सुधार किया जाए, फिर अगले हफ्ते में जो खराबियां पैदा हों उनका सुधार किया जाए। तो तवज्जो और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जुमे के मकासद में से एक ये भी मकसद है कि पहले आना चाहिए और तकरीर को सुनना चाहिए। हम यही कोशिश करते हैं वही बातें बताई जाए जिनकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत है। ना कभी करामतों पर तकरीर करते हैं, ना कभी शहादतों पर तकरीर करते हैं। जब जिस चीज़ का मौका होता है उसी एतबार से तकरीर करते हैं। हमें लगता है इस चीज़ की कमी है तो इस पर तकरीर करना चाहिए। तो आप कोशिश किया करें और इसे आकर के सुना करें। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयत करीमा मैंने पढ़ी, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स फमन काना यरजू, जो शख्स ये उम्मीद रखता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, अपने रब से मुलाकात करे, फलियामल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। शिर्क क्या है? शिर्क की तारीफ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को इबादत के लायक मानना, किसी को इबादत में उसका शरीक समझना। और कौमें कोई तीन तसलीस का कायल है, ईसाई लोग हैं वो तीन खुदा मानते हैं, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो तसलीस के कायल हुए, वो मुशरिक हुए, काफिर हो गए। इसी तरीके से हिंदुओं का मानना है कोई कितने खुदा मानता है, कोई कितने मानता है, वो इस वजह से मुशरिक है। तो ये शिर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा भी किसी को लायक इबादत मानना। तो फरमाया जो चाहता है कि क़यामत के दिन अपने रब से मुलाकात करे, उसे चाहिए कि वो इबादत करे, अच्छे अमाल करे और अपने रब के साथ किसी को इबादत में शरीक ना करे। तो ये सबसे बड़ा दर्जा है। और ना इल्मी की वजह से हम ऐसी बातें करते रहते हैं, सबका मालिक एक है, जैसे वो हैं वैसे वो हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो 1 लाख खुदाओं को मान रहे हैं, हम तो 1 लाख खुदाओं को नहीं मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया है ना ही वो किसी से पैदा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो सबसे शिर्क जो है उसकी कभी बख्शिश नहीं है। शिर्क करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। ये शिर्क है, ये शिर्क अकबर है। एक और शिर्क होता है, ये शिर्क अकबर है, इसका मानने वाला मुशरिक है, काफिर है, उसकी कोई बख्शिश नहीं है, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उलमा फरमाते हैं एक शिर्क ये भी होता है, एक शिर्क ये भी होता है कि मैं अमल करूं और उसमें मेरी नीयत ये होना चाहिए कि लोग इसे देखें। मैं अमल मस्जिद के लिए करूं, मैं अमल मदरसे के लिए करूं, मैं अमल मस्जिद के मजार के लिए करूं, लेकिन मेरी नीयत ये हो कि लोग इसे देखें और मेरी वाह वाह करें। तो उलमा फरमाते हैं कि ये भी शिर्क है। तो
اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بھی نیت رکھتا ہے کہ لوگ بھی تیری واہ واہ کریں تو ایک شے کا ایک اجر ملے گا، یا لوگوں کو تو دکھا لے یا اللہ رب العزت کو تو دکھا لے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میرا عمل دیکھ کر کے لوگ میری واہ واہ کریں، میرا نام ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نے نیکی کی تھی اور تم یہ امید رکھتے تھے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے میری تعریف کریں، میری ناموری کریں، میرے شہرت ہو، تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا تو ان سے اس کام کا بدلہ مانگ، ان سے اس کام کا اجر مانگ جس کے دکھاوے کے لیے تو یہ کام کرتا تھا۔ تو جن کے دکھاوے کے لیے میں یہ کام کرتا تھا، جن کی وجہ سے میں یہ کام کرتا تھا، وہ لوگ تو خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہ لوگ تو خود پریشان ہوں گے کہ کسی طریقے سے میرا حال کوئی پوچھ لے اور میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، میری کوئی سفارش کر دے۔ تو اس دن وہ کروڑوں کی جائیداد، وہ کروڑوں پیسے، وہ لاکھوں کے مکانات جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہوں گے، وہ اپنے گھر جو لٹا دیے ہوں گے صدقے کے نام پر، لیکن ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا تو وہ تمام صدقہ و خیرات برباد چلے جائیں گے اور جہنم کے راستے پہ بھیج دیا جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس کا ماننے والا کافر نہیں ہے، رہے گا مسلمان ہی، لیکن اس کے اعمال بیکار ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آخر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ دور تھا کہ آج تو لوگ وہ اتنے سخت، اتنے کٹر نہیں ہیں جو اس دور میں تھے۔ آج تو یہ ہیں کہ خود اپنے قوانین بدل لیتے ہیں، جن میں انہیں مشکل ہوتی ہے وہ خود اپنے قانون بدل لیتے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اسی بات کے تو وہ مخالف ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر ہی چلیں گے، مسلمانوں کو چاہیے خود جو ہے اپنے اسلام میں تبدیلی کریں، انہوں نے بہت چیزیں اپنی بدل لی، انہیں جو اچھا نہیں لگتا وہ بدل لیتے ہیں، تو اسی بات کے مخالف ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو ہمیں دیکھنا ہے، اس وقت کیسے آپ نے اسلام کی تعلیم کو پھیلایا، کیسے اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ ہمیں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ وہ وقت جب ہندوستان میں کفار و مشرکین کا غلبہ تھا، جب کفار و مشرکین کا غلبہ تھا، وہ اتنے سخت اسلام کے دشمن تھے، ان کا یہ مشغلہ تھا کہ اسلام کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا دیا؟ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو جب ہم اس ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، جب اس تحقیق کو پڑھیں گے، جب ان باتوں کو ہم تاریخ کے صفحات میں دیکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ ان کا اخلاق، ان کا نظریہ، ان کا چلنا پھرنا ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے مجبور ہو جایا کرتے تھے واقعی ان کا مذہب اچھا ہے، ان کے مذہب کو ہمیں ماننا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے کریمہ کی وجہ سے کتنے لوگ صرف یہ بات دیکھ کر کے حضور کے چہرے کی زیارت کر کے آپ کا کلام سن کر کے اسلام لے آیا کرتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی اخلاق کی وجہ تھی۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے حسن کا یہ عالم تھا، جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں، وہ کوئی چیز، کوئی سبزی وغیرہ شاید کاٹ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کے حسن کو دیکھ کر کے سبزی وغیرہ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درس دیا کہ قوم مسلم ایک ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ایک ہیں، تم مذہب اسلام کو مانو، یہ سب سے بلند مذہب ہے، اللہ رب العزت کو ایک مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے اس کا نبی مانو۔ جب آپ کا یہ اخلاق کریمہ
कुफ्फार और मुशरिकीन ने देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उंगलियां कटी थी। इधर मदीना मुनव्वरा के लोग अपनी गर्दनें लेकर के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हो गए और अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हो गए। आज हमें ये देखना है कि हमारा रवैया, हमारा चलना फिरना, हमारा अखलाक, हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। मेरा बच्चा अगर मेरा कहना नहीं मानता है तो मैं उसे गाली दे करके बुलाता हूँ। बच्चे जो होते हैं वो उस बात को रिपीट करते हैं जिस माहौल को देखते हैं। जब मैं अपने बच्चे को गाली दे करके बुलाता हूँ तो कुछ दिनों बाद वो भी मुझे गाली दिया करता है। ये अखलाक का बहुत बड़ा बिगाड़ है। हमें अपने बड़ों से बात करने का तरीका मालूम नहीं है। अपने छोटों के साथ जैसा बर्ताव किया जाए, जैसी परवरिश किया जाए, वो तरीका मालूम नहीं है। तो मजहब इस्लाम तो वो है जिसके बारे में फरमाया इन्नका लाला खुल्कुन अज़ीम, ऐ महबूब पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर के अखलाक करीमा आपका है। और यहाँ हमारा अखलाक इतना बुरा, मैंने देखा है कि वो नौजवान, उनका गाली देना एक तकिया कलाम बन गया है। दोस्ती में गाली देना वो एक अच्छी बात समझते हैं। दोस्ती तो है, तुझे गाली नहीं देंगे तो किसे देंगे। हंसी में तो ही गाली दी थी, अरे मैं दोस्त को गाली नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। तो मजहब इस्लाम तो ये कहता है तुम बुलंद अखलाक वाले हो, अच्छे तरीके से पेश आओ, शीरी जबान में बोलो, गैर लोग भी देखें तो देखने पर मजबूर हो जाए। मजहब इस्लाम का तरीका, चलन फिरन और बोलचाल इतनी बेहतर है तो मजहब इस्लाम कितना बेहतर होगा। तो ये अखलाक करीमा। और दूसरी बात ये कि अखलाक की ही वजह है कि हम इबादत भी करते हैं तो उसमें हम जताना चाहते हैं, हम खिदमत भी करते हैं तो उसमें जताना चाहते हैं। जब मेरी तमाम खिदमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं तो मेरे उसमें ये क्या मकसद होता है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, हाँ भाई मेरा नाम नहीं हुआ, मैंने पूरा काम किया, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। आज मेरी इस गुफ्तगू से किसी को टारगेट बनाना नहीं है। मैं सोच रहा था आज किस मौजू पर तकरीर की जाए, तो जब मैंने फहरिस्त को देखा तो मेरे समझ में आया इन बातों पर बोला जाए। जब मेरा मकसद ही यही है कि मैं मस्जिद की खिदमत करूं तो ये बातें बीच में कहां से आ जाती हैं कि भाई मेरा नाम नहीं हुआ, मेरी बात नहीं मानी गई और मैं जो हूं सब कुछ मैंने कर दिया फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई। सुनो किसकी खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। सुनो ग़ज़वा तबूक के मौके पर आज मैं अगर पूरा दिलो जान, पूरी अपनी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम कर दूं, मदरसे के नाम कर दूं, फुकराओ मसाकीन के नाम कर दूं, लेकिन अगर मेरी नीयत में खोट है तो हदीस पाक में इन्नमल अमालु बिन्नियात, तेरी तमाम खिदमतें बेकार हैं। आमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मस्जिद नबवी शरीफ में ऐलान किया कि लोग सदक़ो खैरात पेश करें, सदक़ो खैरात पेश करें। तो सहाबा किराम का तो जज्बा ही आला था। तमाम सहाबा जो मालदार थे वो भर भर के रकम लाए और मस्जिद नबवी शरीफ में ढेर लगा दिए। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, यहाँ तक के बड़े बड़े ढेर जो है वो जंग के मैदान की तैयारी के लिए जमा हो गए। वहीं पर एक सहाबी रसूल थे जिनके पास कुछ नहीं था, पेश करने के लिए कुछ था ही नहीं, और उनके दिल में ये जज्बा बेदार हुआ कि काश मेरे पास भी कुछ साजो सामान होता तो मैं भी अल्लाह के नबी की बारगाह में कुर्बान करता। ये जज्बा उनके दिल में मोजज़न हुआ। उन्होंने क्या किया, एक यहूदी से किया, कहा उसका बाग था, उससे कहा है यहूदी तेरा बाग जो है वो सैराब होने की कगार पे है, मैं इसमें पानी भर देता हूँ कुएं से, जो मजदूरी मेरी बने वो मुझे दे देना। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें 2 सैर खजूरें मैं दूंगा, तुम मेरे बाग को सैराब कर दो। आज ऐलान हुआ था, लोग भर भर के सदक़ो खैरात मस्जिद नबवी शरीफ में जमा कर रहे थे। इन्होंने रात भर बाग को सैराब किया, रात भर मजदूरी की, और उसके बाद यहूदी ने 2 सैर खजूरें दी। 2 सैर खजूरें दी। इन्होंने क्या किया, 1 सैर खजूर जो थी, सैर एक वजन का नाम है, अपने यहाँ किलो वगैरह चलते हैं, अपने घर पर रख दी और 1 सैर ले जाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश की और कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपने ये ऐलान किया था तो मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, काश मैं भी आपकी बारगाह में कुछ कुर्बान करता।
आज लोग ये कहते रहते हैं कि सब चंदाई करते रहोगे तो अपने बच्चों को पालेंगे कि नहीं। देखो साहब रसूल को कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, काश मैं भी आपकी बारगाह में कुछ कुर्बान कर देता, मैं भी कुछ दे देता, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं। देखो कितने तो ऐसे हैं इनके चंदे नहीं आए हैं, खूब मेले में लुटाए होंगे, उन्होंने मेले में लुटाए होंगे। और मैंने देखा है कोई ज़्यादा नंगे दिखाते हैं, जो अपने फराइज हैं माँ बाप को देख नहीं पाते हैं, जो उनके भाई बहन उन्हें देख नहीं पाते हैं, और बाहर जा कर के पैसे, नौजवान देखा होगा हालात, लुटाते हैं। झूले पे खड़े हो गए तो फ्री में टिकट बांट रहे हैं, ठेले पे खड़े हो गए तो फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हैं। सुनिए, पहले चाहिए कि अपने फराइज को अदा करें। माँ बाप परेशान है तो उन्हें दें, भाई बहन परेशान है तो उन्हें दें। ज़कात जो है उसका भी यही हुक्म है, पहले अपने करीबी लोगों को दिया जाए। तो अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब मैंने ये ऐलान सुना तो मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ। मैंने यहूदी से कहा कि मुझे कुछ उजरत कराई जाए मुझसे और मैं उसका पैसा जो है अल्लाह के नबी की बारगाह में दूंगा। तो मुझे 2 सैर खजूरें मिली थी, 2 सैर खजूरें मिली थी। मैंने एक सैर अपने बच्चों के लिए छोड़ दी और एक सैर आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम एक कोने में ये खजूरें रख दो। तमाम लोगों से कहा, ये तुम्हारे जो तमाम सदकों खैरात है, बड़े बड़े ढेर हैं, दुनिया की मालो दौलत है, अगर आज ये मकबूल हुए हैं तो एक छोटे से ढेर के बदले में जो इन साहबी रसूल ने ला करके दिया है, आज जो सवाब इनके लिए मिला है, आज जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इनके लिए है, वो मर्तबा चाहे उसने अपनी पूरी दौलत दे दी हो, वो मर्तबा उसे नहीं मिला है जो इन साहबी रसूल को मिला है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह क्या है? वजह फरमाया, इसने दिल से दिया था, दिल से दिया था। तुम्हारे पास तो मालो दौलत थी, दे दिया, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। तेरे पास 1 लाख थे, 10,000 दे दिए, कुछ नहीं, लेकिन इसके पास 10 रुपए थे, 10 के 10 इसने अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। और इसकी नीयत ये थी कि अल्लाह के रसूल मुझे मेरे सदक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बान फरमा ले, कबूल फरमा ले। तो हमारी नीयतें ठीक होना चाहिए। आखिरी बात कह रहा हूँ, 2 मिनट और लग जाएंगे। एक हदीस पाक है कि कल क़यामत के दिन एक शहीद को बुलाया जाएगा, शहीद को बुलाया जाएगा, उससे कहेगा तूने अपनी कुर्बानी क्यों दी, क्यों शहीद हुआ? वो कहेगा दीन के परचम को बुलंद करने के लिए शहीद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मैं अलीमुम बिदाति सुदूर हूँ, मैं जानता था जब तू जंग के मैदान में गया तो तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे शहीद कहें, लोग ये कहें कि इसने अपनी जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बान कर दी, लेकिन मैं जानता था तेरे दिल में ये था कि लोग तेरी नामवरी करें, लोगों में तेरा नाम हो। जा, आज तेरे लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है। एक कारी कुरान को, एक आलिम दीन को भी बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा तुम्हें दीन दिया गया, तुम्हें इल्म दिया गया, तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने दीन की खिदमत की, मैंने तकारीर की, लोगों को समझाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मैं तेरे नियत को जानता था, तेरा मकसद ये नहीं था कि लोगों को समझाए, तेरा मकसद ये नहीं था कुरान की तालीम को आम करे, तेरा मकसद ये था कि तेरा नाम हो, लोग तेरी वाह करे, लोग तुझे आलिम दीन कहें, लोग तुझे मुफ्ती कहें। मैं तेरी नियत को जानता था, तेरे लिए कोई अजर नहीं है, तेरे लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है। वहीं पर एक पहलवान को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, वो भी कहेगा मैंने तो दीन के परचम के लिए अपनी ताकत लगाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा नहीं, तेरे दिल में खोट था। वहीं पे उन्हें बुलाया जाएगा जिन्होंने मसाजिद और मदारिस बनाए थे, जिन्होंने मज़ारों की खिदमतें की थी, उनसे पूछा जाएगा तुम्हें दौलत दी गई थी, तुमने क्या किया? कहेगा मौला ताला मैंने तो मस्जिद बनाई थी, मैंने तो मज़ार में पैसा लगाया था, मैंने तो मदरसा बनाया था। कहेगा नहीं, मैं जानता था तेरी नियत सिर्फ ये थी कि लोग तेरी वाह करे, तेरी नियत सिर्फ ये थी कि तू पैसा वाला जाना जाए, लोगों में तेरी वाह हुई, लोगों में तेरा नाम हुआ, लेकिन तेरी नियत में खोट था। तेरी नियत ये नहीं थी कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल हो। आज तेरी तमाम जो है वो इबादतें, तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारा जाता है, तेरे लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है। तो मेरे हर काम का मकसद मैं हूँ, तो मेरे काम का मकसद ये होना चाहिए कि मैं रब के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी बात ये कहाँ से आ जाती है भाई, मैं जो ये हूँ और मुझसे पूछा तक नहीं, मैं ये हूँ, मेरा नाम तक नहीं आया। अरे जब तू रब के लिए कर रहा है तो लोगों में तेरे नाम आने की क्या जरूरत है?
رب کے لیے کروگے تو اللہ رب العزت یہاں بھی خوش رکھے گا اور وہاں بھی خوش رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.